Hello friends, this is Dr. Rajiv Gupta. I am taking the lecture series on stereochemistry topic and I am explaining the multiple choice questions related to this topic. In previous lectures, I explained some questions till question number 12. Now I am taking the question number 13. The molecules shown are, here we have to check isomeric relation between these two molecules. So these are constitutional isomer or enantiomer or diastereomer or identical or none of these. So what could be the option? So as I told earlier that in a previous lecture that we have to first of all we have to check the molecular formula and molecular weight of these two structures. So it is clear that the first structure contains a cyclobutane ring system and the second structure contains cyclopropane ring system. Means in the first structure or first compound total 4 carbon atoms are present, but in the second structure only 3 carbon atoms are present. So these two structures are entirely different structures. There could not be any type of isomeric relation in between these two structures. Means this could not be constitutional isomers, enantiomers, diastereomers or identical. So the correct option is E, means none of these. Actually these both compounds are entirely different. Okay, means both contains different molecular structure or molecular formula and molecular weight. So these are entirely different molecules, so we choose the correct option, that is E. Now next question is, the molecules are, again we have to check isomeric relation. These two structures, as we can see, both have same molecular formula. So now we will check if these are constitutional isomer or structural isomer, or these could be stereoisomers, or these could be identical. So first of all we check the structural isomerism in between these two structures. So we know that in structural isomerism the sequence of bonding of atoms should be different in both these structures, but we can observe that these both structures have same sequence of bonding of atoms. Means this carbon atom contains methyl group, hydrogen atoms, methylene group, and this CH3 group. Now the same form or same sequence of bonding we can find in this second structure. So both have same sequence of bonding, so structural isomer concept is cancelled. Okay, now what we have to check, we have to check identical. Now see here, the both methyl groups are present in trans manner or transoid manner or anti manner. Okay, opposite, at opposite side. One methyl group in first structure is present above the ring and the second methyl group is present or situated at the below side और बॉटम साइड ऑफ द रिंग. ओके, एक ऊपर की तरफ है और दूसरा नीचे की तरफ है, मतलब दोनों ट्रांस पोजीशन में है. लेकिन ये दूसरी जो स्ट्रक्चर है इसमें दोनों की दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड में है, यानी सिन पोजीशन पे है या सिस पोजीशन पे है, या दोनों की दोनों रिंग के नीचे की तरफ है या बॉटम साइड में है. इसका मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर्स आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स नहीं हो सकती. ओके, अब हमको इनके बीच में कौन सा रिलेशन देखना है, एनिशोमेरिक या फिर डायस्टोमेरिक. ये एनिशोमर हो सकते हैं या फिर डायस्टोमर हो सकते हैं. और हमको ये याद रखना चाहिए कि जो सिस ट्रांस आइसोमर्स हैं, देखिए ये वाला आइसोमर जो है वो ट्रांस आइसोमर है क्योंकि दोनों की दोनों मिथाइल ग्रुप ट्रांस पोजीशंस में है, एंटी पोजीशन पे हैं, और यहाँ दोनों सेम साइड में है, मतलब दोनों की दोनों सिस पोजीशंस पे हैं. ओके, या सिन पोजीशन पे हैं.
तो ट्रांस और सिस आइसोमर्स जो कि आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, ये कभी भी मिरर इमेज आइसोमर नहीं हो सकते। तो यहाँ पर एनीशोमर का कंसेप्ट भी हट जाएगा। तो एक्चुअल में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डायस्ट्रोमर्स। बिकॉज हमको पता है कि ट्रांस और सिस आइसोमर्स या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपस में डायस्ट्रोमर्स भी कहलाते हैं, क्योंकि डायस्ट्रोमर्स क्या होते हैं, डायस्ट्रोमर्स आर नॉट मिरर इमेज आइसोमर। ओके, नॉट मिरर इमेज आइसोमर्स। सो द करेक्ट आंसर इज डायस्ट्रोमर्स। तो ऑप्शन ई भी यहाँ पर कैंसिल हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन, सिस ट्रांस आइसोमर्स आर। यहाँ पे डायरेक्टली वही क्वेश्चन पूछा है जो मैंने अभी आपको बताया कि सिस ट्रांस आइसोमर्स आपस में क्या कहलाएंगे। वो डायस्ट्रोमर्स कहलाएंगे, एनिशोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, मोर देन वन ऑफ दीज। ओके, मोर देन वन ऑफ दीज। तो यहाँ पर एक डिफरेंट टाइप का ऑप्शन दिया है, मोर देन वन ऑफ दीज। तो देखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया 14th नंबर क्वेश्चन में कि सिस और ट्रांस आइसोमर्स जो मिरर इमेज आइसोमर नहीं होते वो डायस्ट्रोमर्स भी कहलाते हैं, लेकिन वो एनिशोमर नहीं होते। तो जो डायस्ट्रोमर्स होते हैं वो किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, क्योंकि हमको पता है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म एक ब्रॉड कंसेप्ट है जिसके अंदर एनिशोमर्स और डायस्ट्रोमर्स सभी की सभी इन्वॉल्व होते हैं। तो जो डायस्ट्रोमर्स होंगे वो स्टीरियो आइसोमर्स भी कहलाएंगे, लेकिन ये जो कंपाउंड्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म में कंसीडर नहीं होंगे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों के दोनों करेक्ट हैं, दोनों के दोनों सही हैं। मीन्स क्या हुआ कि यहाँ इन सब में से मोर देन वन ऑप्शन जो है वो पॉसिबल हो सकता है, मीन्स मोर देन वन ऑफ दिस। सो अगर हम इस MCQ के अंदर आंसर ई को करेक्ट करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर ए और सी दोनों करेक्ट हैं। तो ज़्यादा बेटर माना मोर देन वन, यानी मोर देन वन यहाँ पर करेक्ट हैं, तो वो दो ऑप्शन जो है वो करेक्ट हैं। तो आंसर हम क्या रख देंगे, ई, दैट ई ऑप्शन इज मोर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉलिक्यूल्स शोन बिलो आर। अगेन हमको यहाँ पर आइसोमेरिक रिलेशन देखना है दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में। यहाँ पर इनका वेज डैश रिप्रेजेंटेशन शो किया है, जिसमें अगर हम इनको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म में ड्रॉ करें तो ये इनका फिशर प्रोजेक्शन कैसा होगा, ऊपर मिथाइल ग्रुप आएगा, ये Cl ग्रुप। एक्चुअल में ये फिशर प्रोजेक्शन ही है, लेकिन फिशर प्रोजेक्शन को एज अ वेज डैश फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। ये Cl है, ये F और यहाँ पर ब्रोमीन एटम। ओके, तो दिस इज द फिशर प्रोजेक्शन। इन दोनों में हमको कंपेयर करना है कि ये किस टाइप के आइसोमर होंगे। सबसे पहले हम क्या चेक कर लेते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं कि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है कि नहीं। दोनों में देखिए सेंटर में कार्बन एटम है, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल कार्बन एटम सेंटर में, मिथाइल क्लोरो ब्रोमीन फ्लोरो, यहाँ पर भी मिथाइल क्लोरो ब्रोमीन एंड फ्लोरो, मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, उसके बाद में हम किसकी तरफ मूव करते हैं कि दोनों के दोनों आइडेंटिकल हैं या नहीं, या दोनों के दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर हैं कि नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर ही देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर में सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम डिफरेंट होता है, लेकिन इन दोनों स्ट्रक्चर्स में सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि जो सेंट्रल कार्बन एटम है, जो कि एक्चुअल में यहाँ पे किरल कार्बन है, क्योंकि देखिए चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, मिथाइल फ्लोरो ब्रोमो क्लोरो चारों डिफरेंट है, यानी ये दोनों किरल सेंटर है, और चारों के चारों ग्रुप एक सेम कार्बन से अटैच हैं। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ओके, उसके बाद में हम क्या चेक करते हैं, उसके बाद में चेक करते हैं डायस्ट्रोमर्स। सपोज कीजिए हम डायस्ट्रोमर देखते हैं, तो देखिए इस टाइप के कंपाउंड्स में जहाँ पर ओनली वन किरल सेंटर होता है, ठीक है ना, ओनली एंड ओनली वन किरल सेंटर है, इस टाइप के कंपाउंड्स कभी भी डायस्ट्रोमर नहीं हो सकते। जिनमें ओनली वन किरल कार्बन प्रेजेंट होता है वो कभी भी डायस्ट्रोमर नहीं हो सकते। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि डायस्ट्रोमर की पॉसिबिलिटी तब शुरू होती है जब हमको एटलीस्ट हमारे पास दो किरल कार्बन हो, किसी मॉलिक्यूल में दो किरल कार्बन, तब डायस्ट्रोमर की पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन अगर एक किरल कार्बन है ओनली, तब यहाँ पर डायस्ट्रोमर का कंसेप्ट हम रिमूव कर देते हैं। फिर हम क्या चेक करते हैं, आइडेंटिकल या फिर एनिशोमर। आइडेंटिकल कब होंगे, जब दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो जाएंगे, तो आइडेंटिकल। और अगर दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होते तो दोनों एनिशोमर होंगे। तो
इसको चेक करने के लिए हम किसी भी एक स्ट्रक्चर को चूज़ कर लेते हैं। जैसे मैं पहला स्ट्रक्चर चूज़ कर लेता हूँ और हम इसमें कोई भी दो ग्रुप्स को चूज़ करके इस प्रकार से इवन चेंजेस करते हैं। ओके, इवन नंबर चेंज यहाँ पर हम करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या चूज़ करता हूँ, सबसे पहले मैं चूज़ करता हूँ ये जो वर्टिकल लाइन में प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप और ब्रोमो ग्रुप, इसको मैं इंटरचेंज करता हूँ। तो हमको कैसी स्ट्रक्चर मिलेगी, नीचे मिथाइल ग्रुप और ऊपर ब्रोमीन एटम, यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन। ठीक है ना, दिस इज ऑड नंबर चेंज जो फर्स्ट नंबर चेंज किया है। नाउ सेकंड चेंज अगेन करते हैं। इसमें सेकंड चेंज करने पर हमको यहाँ पर एक्चुअल में क्या मिलेगा, आइडेंटिकल कंपाउंड, यानी इस ये जो स्ट्रक्चर मैंने चूज़ की है उस स्ट्रक्चर का आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जब भी हम ऑड नंबर में इंटरचेंज करते हैं कोई दो ग्रुप्स का किरल सेंटर पे, तो हमको चेंज कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज मिलता है। और अगर जब हम इवन नंबर में यानी 2, 4, 6 इस तरह से इवन नंबर में इंटरचेंज करते हैं कोई भी दो ग्रुप्स को चूज़ करके, तो वहाँ पर हमको आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलता है। तो सेकंड इंटरचेंज करते हैं। सेकंड इंटरचेंज मैं करता हूँ ब्रोमीन और क्लोरीन को लेकर। ओके, ये चूज़ करके कर रहा हूँ मैं। तो हमको क्या स्ट्रक्चर मिलेगा, नीचे मिथाइल ग्रुप, ऊपर यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पर ऑलरेडी जो प्रेजेंट है फ्लोरीन। ओके, अब ये जो स्ट्रक्चर हमको मिला है जो इवन चेंज करके मिला है, इवन चेंज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पहला चेंज जो ऑड चेंज है और सेकंड यानी दूसरी बार वापस से इंटरचेंज किया है तो वो इवन चेंज हो गया। इवन चेंज से हमको क्या मिला, ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं एक्चुअल में क्या है, आइडेंटिकल है। तो आइडेंटिकल है मतलब अब इस स्ट्रक्चर को हम कंपेयर कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर से। ठीक है ना, इन दोनों स्ट्रक्चर को, यानी कि ये जो हमको स्ट्रक्चर मिला है इसको हम सेकंड स्ट्रक्चर से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये दोनों की दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एग्जैक्टली सेम है। ठीक है ना, एग्जैक्टली आइडेंटिकल हैं। देखिए ऊपर की तरफ क्या है, क्लोरीन, यहाँ भी ऊपर क्या है, क्लोरीन, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे ब्रोमीन और फ्लोरीन है। इस टाइप से ब्रोमीन लेफ्ट साइड में, यहाँ पे भी ब्लोरीन लेफ्ट साइड में, फ्लोरीन राइट साइड में, फ्लोरीन राइट साइड में, और नीचे की तरफ मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे नीचे की तरफ मिथाइल ग्रुप। तो दोनों की दोनों स्ट्रक्चर्स क्या है, एग्जैक्टली सेम है, दोनों सुपर इम्पोजेबल हैं, मतलब आइडेंटिकल। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। ओके, तो यहाँ पर एनिसोमर का कंसेप्ट हट गया। ओके, और ऑप्शन ई भी नहीं आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मॉलिक्यूल्स बिलो आर, फिर से हमको यहाँ पर आइसोमेरिज्म चेक करना है। ठीक है, तो मैंने बार बार बता दिया कि सीक्वेंस में जाना है हमको। सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक कर लेंगे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो शायद इस दोनों में हमको सेम ही दिख रहा है। ओके, CH3HF, CH3HF, CH3FNH2, CH3FNH2, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला हमको सेम लग रहा है। उसके बाद में किस पे आते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म पे या रेजियो आइसोमेरिज्म पे। तो यहाँ पर हमको सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम चेक करना है। तो देखिए इस कार्बन से मिथाइल फ्लोरीन हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पर भी इस कार्बन से मिथाइल फ्लोरीन हाइड्रोजन जुड़ा है। फिर नीचे की तरफ आइए, इस कार्बन से एमिनो ग्रुप मिथाइल फ्लोरीन, और इस कार्बन से भी एमिनो ग्रुप मिथाइल और फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, मतलब कि सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम भी सेम है। तो यहाँ पर रेजियो आइसोमर या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर का कंसेप्ट हटा देते हैं। ओके, अब हम किस पे आ जाते हैं, अब हमको चेक करना है कि या तो ये आइडेंटिकल हो सकते हैं दोनों, या फिर एनेंशियोमर या फिर डायस्टियोमर। ओके, तो हमको वही काम करना है कि हम कोई भी एक मॉलिक्यूल पकड़ते हैं, कोई भी इस एक मॉलिक्यूल को चूज़ करते हैं, और उसके अंदर ये जो किरल सेंटर्स हैं, देखिए ये दोनों किरल सेंटर हैं। ओके, दोनों किरल कार्बन है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, मिथाइल और ये पूरा ग्रुप, और नीचे वाले कार्बन पे भी फ्लोरीन, मिथाइल, एमिनो और ये अलग ग्रुप, यानी दोनों की दोनों कार्बन किरल कार्बन है, क्योंकि उनसे जुड़े हुए जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं या एटम्स हैं या ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो इन दोनों किरल कार्बन पे हम इवन नंबर में इंटरचेंज करके देखते हैं और पता करते हैं कि यहाँ पर इस मॉलिक्यूल के जैसा स्ट्रक्चर मिलता ही कि नहीं। अगर इसके जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा तो आइडेंटिकल हो जाएंगे, और नहीं मिलेगा तो फिर हम एनिसोमर या डायस्टोमर की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर इवन नंबर चेंजेस करता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट नंबर कार्बन पे करता हूँ। ओके, फर्स्ट नंबर कार्बन यानी फर्स्ट नंबर किरल कार्बन, जो फर्स्ट किरल कार्बन है उस पर इंटरचेंज करता हूँ।
तो सपोज कीजिए मैं क्या इंटरचेंज करता हूँ, हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप को यहाँ ले जाते हैं। सपोज कीजिए हम क्या इंटरचेंज करते हैं, मिथाइल ग्रुप एंड हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। ओके, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इंटरचेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर थोड़ा सा फास्ट करना है हमको तो डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। देखिए मिथाइल ग्रुप वेज डैश पर है ऊपर की तरफ हॉरिजॉन्टल लाइन में, सॉरी वर्टिकल लाइन में। यहाँ भी मिथाइल ग्रुप डैश पर है वर्टिकल लाइन में, तो मिथाइल की पोजीशन सेम है। ओके, अब किसकी पोजीशन चेक करते हैं, हाइड्रोजन एटम एंड फ्लोरीन एटम। देखिए यहाँ पर फ्लोरीन एटम इस मॉलिक्यूल में राइट साइड में दिख रहा है आपको, लेकिन इस दूसरी स्ट्रक्चर में जो फ्लोरीन एटम है वो लेफ्ट साइड में है। मतलब हाइड्रोजन और फ्लोरीन एटम इंटरचेंज हो गए हैं दूसरी स्ट्रक्चर में। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो पहला किरल कार्बन है उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो गया है। यानी पहली स्ट्रक्चर और दूसरी स्ट्रक्चर को कंपेयर करें तो दोनों के जो पहला किरल कार्बन है उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है। ओके, तो पहले वाले में चेंज मिल गया हमको। अब हम सीधे दूसरे वाले में चेक करते हैं। दूसरी स्ट्रक्चर में हमको यहाँ पर इवन चेंज करके दिखाने पड़ेंगे, तभी थोड़ा सा क्लियर होगा इमेज। तो इवन चेंजेस करके देखते हैं। पहले मैं फर्स्ट इंटरचेंज कर रहा हूँ। फर्स्ट इंटरचेंज करता हूँ मैं एमिनो ग्रुप और मिथाइल ग्रुप को लेकर। ओके, एमिनो एंड मिथाइल ग्रुप को इंटरचेंज कर देता हूँ। तो मिथाइल ग्रुप कहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट साइड में, और एमिनो ग्रुप कहाँ चला जाएगा, राइट साइड में, और फ्लोरीन एटम जो है वो एज इट इज़ वहीं रहेगा। ओके, अब यहाँ पर फिर से दूसरा इंटरचेंज करता हूँ, सेकंड इंटरचेंज। सेकंड इंटरचेंज में मैं करता हूँ मिथाइल को यहीं रखता हूँ, क्योंकि मिथाइल देखिए यहाँ पर लेफ़्ट साइड में है और इस स्ट्रक्चर में भी लेफ़्ट साइड में ही है। तो अब हम इंटरचेंज कर सकते हैं इन दोनों के अंदर, ठीक है ना। कौन सी स्ट्रक्चर में, फर्स्ट स्ट्रक्चर में। ओके, यहाँ पर नहीं, फर्स्ट स्ट्रक्चर में। ओके, हम इंटरचेंज किस में कर रहे हैं, फर्स्ट स्ट्रक्चर में। तो अब मैं इंटरचेंज किसके बीच में करता हूँ, फ्लोरीन एंड एमिनो ग्रुप। तो फ्लोरीन और एमिनो ग्रुप में इंटरचेंज करने पर हमको क्या मिलेगा, CH3 तो वहीं रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्लोरीन, और यहाँ पर NH2। ओके, तो अब आप इस पोर्शन को चेक कीजिए। ये जो पोर्शन है वो इस पोर्शन का आइडेंटिकल है, ये और ये दोनों आइडेंटिकल है, क्योंकि यहाँ पर हमने इवन नंबर में इंटरचेंज किया है। यानी दोनों किरल कार्बन का जो सेकंड नंबर किरल कार्बन है उसका कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो अब हमको इसको और इसको कंपेयर करना है। तो देखिए ये दोनों की दोनों सेम है। मिथाइल ग्रुप लेफ्ट साइड में, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप लेफ्ट साइड में, एमिनो ग्रुप नीचे, यहाँ पे भी एमिनो नीचे, फ्लोरीन राइट साइड में, यहाँ फ्लोरीन राइट साइड में। तो अगर हम इन फीचर प्रोजेक्शन में देखेंगे तो हमको सेकंड जो किरल कार्बन है उसका कॉन्फ़िगरेशन सेम मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, पहले वाले किरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट था, लेकिन दूसरे किरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो ये कंसेप्ट किस में आता है, यानी कि ये दोनों की दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों स्ट्रक्चर्स हैं, वो मिरर इमेज नहीं हैं, नॉट मिरर इमेज। तो नॉट मिरर इमेज आइसोमर किस में आ जाते हैं, डायस्ट्रियोमर्स में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। सो दीज बोथ स्ट्रक्चर्स आर डायस्टीरियोमर्स। तो एनिशोमर का कंसेप्ट हट गया, आइडेंटिकल का हट गया, नन ऑफ दीज वाला हट गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉलिक्यूल्स शॉन आर। फिर से हमको वही चेक करना है कि ये स्ट्रक्चर्स कैसे हैं। तो सबसे पहले क्या चेक करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो देखिए दोनों केस में जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है। देखिए आप इसके लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखिए। यहाँ पर क्या है, साइक्लोब्यूटेन रिंग, और यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन रिंग। लेकिन हुआ क्या है कि यहाँ से एक मिथिलीन ग्रुप रिमूव होके कहाँ आ गया, इस तरफ। तो क्या बन गया, मिथाइल ग्रुप। तो अगर आप इन दोनों के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखोगे तो क्या आएगा, कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन। देखिए इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन। यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 कार्बन, C4। उसके बाद में हाइड्रोजन चेक कीजिए तो ये CH2 CH2 CH2H, मतलब 6 and 7। हाइड्रोजन कितने हैं, 7। इसमें भी देख लीजिए हाइड्रोजन कितने हैं, 7, 3 4 5 6 7। उसके बाद में फ्लोरीन कितना है, 1।
तो दोनों के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मतलब दोनों में आइसोमेरिज्म होने की 100% पॉसिबिलिटी है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर हो सकते हैं या फिर ये स्टीरियो आइसोमर या फिर आइडेंटिकल। तो यहाँ पर नन ऑफ दीज वाला कंसेप्ट पहले ही हट गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये जो आइसोमेरिज्म है उसके अंदर पहले वाले में 4 मेंबर्ड रिंग है, 4 कार्बन की रिंग है, और दूसरे वाले में 3 कार्बन की रिंग है। तो एक्चुअल में ये दोनों जो कंपाउंड्स हैं वो चेन आइसोमर हैं। ओके, दीज आर चेन आइसोमर्स, जहाँ पर यहाँ पर 4 कार्बन की चेन है और यहाँ पर 3 कार्बन की चेन है। तो जो चेन आइसोमर्स होते हैं वो हमेशा स्ट्रक्चरल आइसोमर या रेजियो आइसोमर या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर होते हैं, जहाँ पर सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम्स चेंज हो गया है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? ए, और बाकी सभी ऑप्शंस यहाँ पे क्रॉस हो जाएंगे। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉलिक्यूल्स बिलो आर। अगेन हमको आइसोमेरिक रिलेशन देखना है, तो सबसे पहले हम इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो सेम ही है, दोनों में एक एक किरल कार्बन प्रेजेंट है क्योंकि चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं। दोनों किरल कार्बन हैं, उनसे जुड़े हुए जो ग्रुप्स हैं वो भी सेम है। देखिए, मिथाइल फ्लोरो क्लोरो हाइड्रोजन, यहाँ पर भी मिथाइल फ्लोरो क्लोरो हाइड्रोजन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर की पॉसिबिलिटी हट गई। अब हमको चेक करना है आइडेंटिकल या फिर एनिसोमर या फिर डायस्ट्रोमर। ठीक है ना, इन ऑप्शंस में जनरली नन ऑफ दीज होना पॉसिबल नहीं है, नन ऑफ दीज नहीं हो सकता। कि या तो ये पॉसिबल है कि या तो ये एनिसोमर होंगे, डायस्ट्रोमर होंगे या फिर आइडेंटिकल होंगे। अब अगेन मैं फिर से बताता हूँ कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स में ओनली 1 किरल सेंटर है, ओनली केवल एक किरल सेंटर है। तो ये डायस्ट्रोमर नहीं हो सकते, क्योंकि डायस्ट्रोमर होने के लिए कम से कम 2 किरल कार्बन चाहिए इस तरह के मॉलिक्यूल्स में। तो अब हमको किसकी तरफ मूव करना है? या तो ये एनिसोमर हो सकते हैं या फिर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल होने के लिए इन दोनों का सुपर इम्पोजेबल होना जरूरी है, और एनिसोमर होने के लिए इन दोनों का नॉट सुपर इम्पोजेबल होना जरूरी है। तो देखिए, इन स्ट्रक्चर्स में हमको क्या देखना पड़ेगा? इवन चेंजेस करके देखना पड़ेगा। तो फिर से मैं पहला स्ट्रक्चर चूज करता हूँ, और पहले स्ट्रक्चर में मैं फर्स्ट इंटरचेंज करता हूँ कोई भी 2 ग्रुप्स लेकर। पर आपको यहाँ पर 2 ग्रुप्स वो चूज करने हैं कि आपको थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को इसके रिलेवेंट करना है, इसके पास में लाना है। तो देखिए, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप नीचे की तरफ है, तो आप किस में इंटरचेंज करो? इन 2 ग्रुप्स के बीच में सब। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? नीचे की तरफ मिथाइल ग्रुप और ऊपर की तरफ हाइड्रोजन एटम, और ये क्लोरीन और फ्लोरीन एज इट इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन पे रहेंगे। तो ये पहला इंटरचेंज हो गया। अब हमको सेकंड इंटरचेंज करना है, क्योंकि इवन इंटरचेंज करने के लिए यानी आइडेंटिकल बनाने के लिए तो हम किसको चूज़ करते हैं? हम चूज़ करते हैं हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ओके, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन मैं चूज़ करता हूँ, और बाकी फ्लोरीन और मिथाइल को एज इट इज़ रखता हूँ। तो क्लोरीन यहाँ आ जाएगा ऊपर और हाइड्रोजन इस तरफ आ गया। अब जो ये मॉलिक्यूल है वो इस पहले मॉलिक्यूल का आइडेंटिकल है, यानी सेम ही है दोनों। अब हमको कंपेयर करना है इसको सेकंड स्ट्रक्चर के साथ में, कि ये सेकंड स्ट्रक्चर जो है और ये इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप नीचे की तरफ, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप नीचे की तरफ, हाइड्रोजन राइट साइड में, यहाँ पे भी हाइड्रोजन राइट साइड में, फ्लोरीन लेफ्ट साइड में, फ्लोरीन लेफ्ट साइड में, और क्लोरीन एटम अप साइड में ऊपर की तरफ है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी अप साइड में। ओके, फिशर प्रोजेक्शन ही है ये। तो मीन्स क्या हुआ? दोनों की दोनों जो है वो सुपर इम्पोजेबल है, दोनों की दोनों सेम है, दोनों की दोनों आइडेंटिकल है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? डी ऑप्शन। तो ये एनिसोमर नहीं है। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दीज आर आइडेंटिकल। So thank you for listening this lecture.